السلام علیکم ایوری ون، کیا حال ہے سب لوگوں کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اچھا، تھینک یو سو مچ جن لوگوں نے میری لاسٹ ویڈیو کو دیکھا اور اس پہ فیڈ بیک دیا. فیڈ بیک دیتے رہیں اینڈ یہ جو ہے بہت میٹر کرتا ہے. تھینک یو سو مچ فار دیٹ. اور میری نئی ویڈیو میں ویلکم. ہمیشہ کی طرح شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو آنکھوں کی خیانت اور دلوں کے حال سے خوب واقف ہے. یہ میں نے سوچا کہ ہم اس میں اسماء الحسنی سٹارٹ کرتے ہیں. میں ہر ویڈیو میں دو ایڈ کیا کروں گی. تو آج کے ہمارے جو دو ہیں وہ الرحمن اینڈ الرازق. اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی خصوصیت، ساری خصوصیات ہیں وہ بھی بڑی ہیں، وہی بڑی ہیں، لیکن الرحمن اس کا مطلب ہے کہ وہ بے حد رحم کرنے والا ہے. یہ چیز کیا ہے کہ وہ بہت رحم کرنے والا ہے، وہ آپ کو معاف کرنے والا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو بس چاہیے کہ آپ توبہ کر لیں. اگر آپ سے غلطیاں ہوتی ہیں، انسان سے ظاہر غلطیاں ہوتی ہیں، تو ویسے بھی جو دل ہیں وہ محبت سے پگھلتے ہیں. وہ ڈر سے آپ کسی کو اوبے نہیں کر سکتے، آپ محبت سے کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے پیار کریں، اس کی عبادت کریں اور اس میں وہ محبت والا فیکٹر ڈالیں. اور الرازق، ہم سب کا رزق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اور اس کے ساتھ یہ تھوڑی سی جو ہیں ٹپس ہیں ایک طرح سے کہ جو اگر آپ انہیں پڑھتے ہیں تو ان کے فوائد ہیں. اچھا جی، الرازق. آج ہمیں ملٹیپل ٹینشنز ہوتی ہیں، ہماری جاب نہیں ہے جی، پاکٹ منی ختم ہے، یہ ہے وہ ہے. اس سب کا سمپل فارمولا کیا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم مجھ سے مانگو تو میں تمہیں دوں گا. ٹھیک ہے، مجھے ایگزیکٹلی نہیں چیزیں یاد، لیکن یہ ہے کہ مفہوم اسی طرح ہے. اوکے، میں نے اس سلائڈ پہ یہ کچھ میجک ٹائپ کی چیزیں ڈالی ہیں، پکچرز ڈالی ہیں. تو میجک ہم کسے کہتے ہیں کہ وہ جس میں آپ کو تھوڑی سی ایفرٹ پٹ کرنے پڑے اور آپ کو ایسا رزلٹ ملے جو آپ کو خوشی کے ساتھ ساتھ حیرت زدہ کر دے. رائٹ. تو اس میں یہ ہیں چیزیں. آج جو مین اس ویڈیو میں نے ڈسکس بھی کرنا ہے وہ بھی یہی ہے کہ کچھ میجیکل ٹرکس ہیں. ایک دفعہ مجھے لگا کہ یہاں پہ شاید میجیکل ورڈ ڈالنا ٹھیک نہیں ہے، بٹ دین آئی ڈیسائیڈڈ کہ ہم اس پہ بات کر سکتے ہیں. تو بیسیکلی یہ ہے کہ آپ تھوڑی سی ایفرٹ پٹ کرتے ہیں. ظاہر ہے اب آپ کو تھوڑا سا تو کرنا پڑے گا نا. تھوڑی سی ایفرٹ پٹ کرتے ہیں تو آپ کو جو ہے آپ کی زندگی، آپ کا دن ٹھیک ہونا نظر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، نظر آتا ہے کہ چیزیں کیسے آپ کے حق میں ہو رہی ہیں. صرف آپ نے کرنا کیا ہے کہ یہ کچھ چیزیں ہیں جو اپنی ڈیلی لائف کا پارٹ بنانا ہے آپ نے. اچھا جی، سب سے پہلی بات ہے نماز. ہم شروع سے سنتے آئے ہیں، بکس میں پڑھا ہے، ہر چیز ہمیں پتا ہے، لیکن دین ہماری عادت کیوں نہیں بن پاتی نماز پڑھنے کی؟ جو ہے ہوتا یہ ہے، مجھے یوں لگتا ہے کہ ایک طرح سے ہم نے مذہب کو بڑی ہائی والی چیز بنا دیا ہوا ہے. دس مینس دیٹ کہ ہم سمجھتے ہیں اچھا کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے نا ریگولرلی، ماشاء اللہ، ایک تو بہت اچھی بات ہے، تو ہم کہتے ہیں اچھا تم تو بڑی نمازیں پڑھتے ہو. تو اب شیطان تو ساتھ کھڑا ہے ہر وقت، تو اس نے تو اسے کہنا ہے کہ اچھا بھائی میں بڑی چیز ہوں. تو ایک طرح سے شاید ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم نماز پڑھ کے کوئی بڑا احسان کرتے ہیں. نہیں بھائی، نماز ایک بیسک چیز ہے، بالکل ایسی جیسے آپ صبح اٹھ کے جو ہے آپ کیا کرتے ہو، آپ نے کرنا ہے منہ دھونا ہے. یہ بالکل اتنی ہی بیسک چیز ہے اور آپ کی ریکوائرمنٹ ہے. جیسے آپ کھانا کھاتے ہو، ہم کبھی کسی کو کھانا کھاتے ہوئے دیکھ کے یہ تو نہیں کہتے کہ اچھا تم تو کھانا کھاتے ہو. یہ وہ چیز ہے نا، تو اس کو نارملائز کریں. آپ کسی کو پڑھتے ہوئے دیکھتے، میری ایک ٹپ ہے، آپ اسے یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری نمازیں قبول فرمائے. آپ اسے یہ کبھی نہ کہیں کہ اچھا تم تو بڑی نمازیں پڑھتے ہو نا، یہ نہ کہیں. بے شک آپ اپنی طرف سے تعریف کر رہے ہیں، لیکن جو ہے ہر پوائنٹ پہ برائی کی طرف جانے کا خطرہ لگا رہتا ہے. تو اس چیز کو نارملائز کریں اور یہ آپ ڈیسائیڈ کر کے نماز پڑھیں کہ یہ ایک بیسک چیز ہے، یہ ایک ضروری چیز ہے. اور یہ تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اس نے اس کے نتیجے میں ہمیں ثواب بھی دے دیا ہے. دیکھیں کتنی اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ کی کتنی خوبصورت بات ہے. اور دعا مانگنی ہے جی، نماز پڑھنی ہے. آپ نے کوشش کریں کہ آپ اپنی نماز کو جو ہے اپنی عادت بنائیں. میں نے کہیں دیکھا تھا کہ گوگل کہتا ہے کہ 21 دن لگتے ہیں کوئی عادت بننے میں. چلیں تھوڑا اوپر نیچے کر لیتے ہیں، ہم 25 پہ چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ایون فیمیلز جو ہیں ہمارے وہ جو سائیکل ہے اس میں 25 ڈیز تو آ جاتے ہیں. تو 25 ڈیز آپ پریکٹس کر سکتے ہو. ٹھیک ہو گیا. بے شک یہ ہے کہ آپ کو درمیان میں تھوڑا سا گیپ آ جاتا ہے، تو اس میں 25 ڈیز تک آپ ایک چیز ریپیٹ کرو. شروع میں تھوڑا مشکل ہوتا ہے، بٹ اس چیز کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہو کہ یا اللہ میرا دل اپنی طرف بدل دے، اپنی طرف لگا دے.
अच्छा जी, ये इसका क्या, ये मैंने क्यों डाला कि आप लोग अभी आजकल ये ड्रामा देख रहे होंगे, आई थिंक हम पे लगता है या एयरवे पे, मुझे नहीं सही पता क्योंकि मैं तो यूट्यूब पे देखती हूँ। इसमें क्या है, इतनी प्यारी चीज है, इतना नॉर्मलाइज किया हुआ उन्होंने नमाज को। मतलब वो लड़की सुबह उठती है तो उसे पता है कि मैंने नमाज ही पढ़नी है और मैंने कुछ नहीं करना, ठीक है। वो अपनी नमाजों को उसने डेली लाइफ का पार्ट बनाया हुआ है, उसकी साथ सारे मसले चल रहे हैं, ठीक हो गया। उसकी जो है वो लाइफ जा रही है, उसका एक तरफ मंगेतर है, कभी वो उसका मंगेतर है कभी नहीं है, उसके घर वाले हैं, प्रेशर है, फाइनेंशियल प्रेशर है, लेकिन वो अपनी नमाजों पे कंप्रोमाइज नहीं करती, ठीक है। तो ये सबसे अच्छी बात है, मैंने कहा इसको अप्रिशिएट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम नेगेटिव कमेंट्स तो बहुत देते हैं। देन सदका, अच्छा ये इतनी खूबसूरत चीज है ना, ये चीज मैंने अपने जो है ना लाइफ में ये एक्सपेरिमेंट किया है, एक्सपीरियंस किया है, ठीक है। और इसके इतने पॉजिटिव इफेक्ट्स आते हैं। आप ना दें बड़ा सदका, जरूरी नहीं है कि आप बकरे देने लग जाए, काला बकरा देना जी, नहीं जी। आपके पास रोज की पॉकेट मनी 20 रुपए मिलती है ना आपको, फॉर एग्जाम्पल, आप खैर 20 तो नहीं मिलती, बच्चे 100 रुपया लेते हैं, और स्पेशली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स तो ज्यादा उन लेते हैं। आप 2 रुपए उसमें से दे दें, आपके पास 50 है, आप उसमें से 5 रुपए दे दें, रोज का दें सदका, ये सोच के सदका दें कि मैंने अल्लाह की राह में देना, और आपको पता भी नहीं चलता कि कैसे आपकी चीजें ठीक होने लग जाती हैं, आपके हक में होने लग जाती हैं, और अल्लाह का शुक्र अदा करें, और अल्लाह से ये कहते हैं कि या अल्लाह मुझे तौफीक दे कि मैं ये काम करूं। और एक चीज मैंने पढ़ी थी, लेक्चर्स में देखी थी और पढ़ी थी, कि ये है कि क़यामत के दिन इतना होलनाक दिन होगा मैशर का। तो मैशर में वो जिसम के बारे में कुरान में सूरह रहमान में अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब आसमान जो है तेल की तलछट की तरह गुलाबी हो जाएगा, तो अल्लाह माफ करे, इतना होलनाक दिन होगा। तो ये है कि उस दिन हम पे साया कौन करेगा, ये जो हमने सदका दिया हुआ होगा, अल्लाह का जो अर्श है उसका साया उस बंदे पे होगा जो उसने सदका दिया हुआ है। सो आप इसको अपनी आदत बनाएं। आप अब एक और बहुत बड़ी बात है कि अल्लाह ताला ने हमने क्या, इस्लाम की इतनी खूबसूरत बात है कि उसने स्माइल करने को भी सदका कह दिए। वाह, एक तो ये है ना कि माल जो है, एक माल की मोहब्बत होती है। हमें से अक्सर जब हम लोग कहते हैं कि अपने पैसे कमाए तो वो लगाने का दिल नहीं करता, भाई नहीं, खुद को पैसों की मोहब्बत में ना मुब्तला करें, कोशिश करें, बस ये नेचुरल चीजें नहीं है, कुछ जाहिर है क्योंकि ये हमारा इम्तिहान है ना, तो आप थोड़ा थोड़ा करके देने लगे, आप थोड़ा थोड़ा करके देने लगेंगे ना, आप में इतना जज्बा आ जाएगा, आप ज्यादा देने लग जाएंगे। अच्छा जी, मैं थोड़ा इसको फास्ट चलाती हूँ क्योंकि हमने इसका ड्यूरेशन बहुत ज्यादा नहीं करना। छोटे से छोटा आपका काम है, आपकी नीयत मैटर करती है। मैंने अगले दिन एक सुना थी बात के लेक्चर में किसी में कि क़यामत के दिन आपकी नेकियां गिनी नहीं जाएंगी, वो तोली जाएंगी। तो वो तोली किस बेस पे जाएंगी, उसके अंदर कितनी प्योरिटी होगी, ठीक है, कितनी वो खालिस नेकी होगी। स्माइल सदका है, और ये एक बड़ी अच्छी टिप है कि आपके पार्टनर के साथ आपका जो अच्छा सलूक है वो भी सदका है। अच्छा जी, ये जो है ना एक्चुअली मैजिकल वर्ड्स हैं, और ये मेरी फेवरेट वर्ड्स है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप इसको अपनी आदत बनाएं, ठीक है, इसलिए नहीं कि आपको इसके बदले में स्वाब मिलेगा, इसलिए कि वो अल्लाह इतना बड़ा है कि वो तमाम जहानों को पाल रहा है। इतनी खूबसूरत बात है ये। आप इससे क्या होता है कि आपका अल्लाह ताला के साथ एक तशक्कुर वाला सिलसिला कायम हो जाता है। सो आप इसको प्रैक्टिस करके देखिए। हम शुरू में इसको आप रैंडमली पढ़ें यार, इसके लिए तो वजू भी नहीं करना पड़ता, तो आप इसको चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते आप जो है ना इसको पढ़ते रहिए, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। एक चीज रिपीट करने से आपको होने लग जाती है, इरिटेट होने लग जाते हैं। आप इसको उर्दू में पढ़ें, सब तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला है। आप इंग्लिश में पढ़ लें जी, ठीक हो गया। देन हाँ जी, इसको प्रैक्टिस करें और हर उस चीज का शुक्र अदा करें जो आपके पास है। आपके पास सबसे बड़ी चीज जिंदगी है। कोई आपको कहे हाँ आप मर जाएं और मैं जो है आपको कोई अरबों रुपए दे दूंगा, आप मरने के लिए तैयार नहीं होंगे। और यकीन करें, आप अस्पतालों में जाके देखें, ठीक है, आपको कदर आएगी जिंदगी की। जिंदगी, सांस, सेहत, रिज्क, एहसास, सुकून, फैमिली, इतनी ये बड़ी नेमतें। आप कोशिश करें कि आप इस बारे में सोचें और अल्लाह का शुक्र अदा करें। अच्छा जी, ये चीज है कि हम मुझे पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत है, हर किसी को होती है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। अच्छा, होता ये है कि मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मुझे अगर पाकिस्तान के अलावा कहीं और रहने का मौका मिले तो वो मैं तुर्की में रहूंगी। क्यों तुर्की और सऊदी अरेबिया से तो डेफिनेटली आपको पता होगा, बट अरे तुर्की, वो ये कि वो लोग इतने प्यारे अंदाज में बात करते हैं, वो लोग बात बात पे एक दूसरे को दुआएं देते हैं।
मेरी फेवरेट चीज जो है, आप उनके ड्रामास बहुत मशहूर हैं आजकल, तो आप उसमें देख सकते हैं। तो हम यहाँ पाकिस्तानी क्या करते हैं, कोई बंदा ऐसे करता है तो हम कहते हैं इसको शो ऑफ करने की बड़ी आदत है। ये क्या चीज है यार, वो दे रहा है किस नीयत से दे रहा है वो उसको पता है, आप उसको जस्ट अप्रिशिएट करें। छोटी छोटी जो दुआएं हैं वो पढ़ना शुरू करें, आपको अरबी में नहीं आती, आप उर्दू में पढ़ना शुरू कर दें। आप अपना बात का आगाज सलाम से करें, सलामती भेजें, ये दुआ है एक। आप सुबह उठते हैं, उठते ही कलमा पढ़ने का कहा गया, छोटी छोटी। आपको वॉशरूम जाना है, उसके लिए आप दुआ पढ़ें, ठीक है। आपको नहीं पता, उसका अरबी नहीं याद हो रही, आप उसको उर्दू में पढ़ें। थोड़ी छोटी, अल्हम्दुलिल्लाह कहें, थैंक यू की जगह जज़ाकिल्लाह कहें, ये सारी चीजें। ऐसा जी। देन है हमारे जो है ना, इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है दो हमारी बॉडी के, आपका माइंड और आपका हार्ट, इन दोनों में कहते हैं कि बैलेंस होना बहुत जरूरी है। ठीक हो गया, तो इस चीज को हम देखेंगे कि क्या सीन है। अच्छा जी, आपकी जो माइंड में जो चीज जा रही है ना, उसका इफेक्ट आपके हार्ट पे होगा और अल्टीमेटली आपकी पूरी बॉडी पे होगा। ठीक हो गया, तो इसमें मेन पॉइंट ये है कि एक स्पेशलिस्ट के पास जाना कितना जरूरी है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप इरिटेट हो रहे हैं, आपको कोई चीज तंग कर रही है, आप स्ट्रेस में जा रहे हैं, ठीक है, तो आप स्पेशलिस्ट के पास जाएं यार, जरूर जाएं। आपको क्या चीज रोकती है? ठीक हो गया, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिससे आपकी फिजिकल बीमारियां होती हैं, इसी तरह आपकी मेंटल बीमारियां होती हैं जो थोड़ी अरसे की मेडिटेशन के बाद ठीक हो जाती हैं। ठीक होगा, अब एक कुछ लोग साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट का होता है, तो साइकेट्रिस्ट जो होते हैं उनको मेडिसिन पे लेके जाते हैं, फिर लोगों को एक ही आदत है। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो खुद ले रहे हैं बट देन दूसरे को कहेंगे कि आप जो है ना लें, आपको आदत बन जाएगी। भाई तुम खुद भी तो ले रहे हो ना। तो ये है कि बेशक उनकी इंटेंशन ठीक है, लेकिन यार आप लें, क्योंकि वो डॉक्टर है बेचारा, उसने इतने अरसे से पढ़ा हुआ है। तो आप उस चीजों पे अमल करें और आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह आप बेटर होना शुरू हो जाएंगे और आपको फील होगा। अच्छा जी, ये मैंने एक आयत ऐड की थी, आयत का तर्जुमा। तो आप अगर छोटी सी नेकी करते हैं, आपको दुनिया में उसका सिला नहीं मिलता, तो आप अल्लाह ताला पे भरोसा रखें, आपको इंशाल्लाह उसका सिला जरूर मिलेगा। अच्छा जी, थैंक यू सो मच, जज़ाकिल्लाह। ये देखने के लिए इस पे अपना फीडबैक दीजिएगा, वो बहुत मैटर करता है। आपके कोई सजेशंस हैं वो भी बताइएगा। थैंक यू सो मच, और खुश रहें, खुश रखें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।